pleasure to extend to you a very warm welcome on behalf of Vimash, who has clubbed all of us for this insightful session. So therefore I welcome the Speaker of Eminence, Vishnu Shankar, YUVA Supreme Court. Also welcoming our Section Chair, Dr. Avinash Kumar, Assistant Professor at Guru Gobind Singh IT University. Our keynote speaker, Paul Antipol, is the editor at Greek City Times. And I'll also welcome our special guest, Pawan Kumar Ji, Professor of Physics, Rajdhani College University. I'll request Sushant sir to come ahead and felicitate Vishnu Ji. Vivek, I'll request Moon to come up on stage and felicitate Mr. Paul. I request Aditya to come up on stage and felicitate Mr. Avinash. I request Sai Priya to come up on stage and felicitate our guest, Pawan sir. Moving on, I'd like to call our convener Sushant Ji on podium to brief us about the day's session. Namaste. First of all, I would like to welcome you all. I would like to thank our guests, our speakers, and today's session is a very thought-provoking session, and it is actually reverberating topic. So today's topic is the constitutionality of the Places of Worship Act and the Waqf Act. So the question is whether a parliamentary act strategy can snatch away my right to worship. So this session is all about this discussion, and today we have the guests, so I will not be taking much time because you are waiting for them. So okay. I'm sure all of you are intrigued by the day's session, and that indeed was our aim, which is Constitutionality of Places of Worship Act and Waqf Act 1991. So who better to learn it from other than an eminent speaker? So I'd like to call Avinash Sir, Assistant Professor, and I'll hand it over the podium to you. Good morning to all of you. When I received this invitation, it was very difficult for me to consent for the same because I was in hospital and my 2-day-old baby is in incubation center. I think that law we are not associated, law is not indulged. Aristotle once told we are the social animals and politics cannot do away, or like we cannot remain silent, we cannot remain
without politics. But when we talk about the law and the legal system, I came to know that many students is not here belonging to the law or legal background. They are like from the non-law background. But we all are aware that the political system, the political stability of the system is related to law. Law or the legal system is there to make a politically stable system, and that is related to our prosperity, that is related to our economic development, and that is related to everything. But we have seen in like our old traditions, we have been ruled by Britishers for more than 200 years, and our legal system is having reflections of that British legal systems. And there what we have done, we have do away with our own legal system which we have developed, and we basically adopted the legal system given by that Britishers, the jurisprudence, the legal jurisprudence given by that Britishers. And how that took away our own systems. You must be aware the Panchayat system was there, that was like a very good system, no pendency of the cases was there, and any dispute was arising, that was immediately resolved. But somehow that was like done away, and that was called as a traditional system, and then some new system of mediation and arbitration was introduced. So we can say that mediation and arbitration is like working in the same manner, but with a different name, and the credit was given to some different person. And when we talk about the topic which has been given to me, that Sabrimala case, you must be remembering. Even there, this court decided in favor of that woman can enter into the places of worship, even like during the menstruations and all. We can say that Indian jurisprudence, in that judgment itself, Manu was quoted, and the Manu like cited there that during the menstruation period, the woman is like impure, and at that time the worship was not given. We can say that many like political system or many legal system outside the India is there, and there like no tempering with the legal system or tempering with the socio-cultural setup has been done. But in Indian cases, we have seen that our judiciary and even like many legislations is tempering with our lives, tempering with our cultures, and we have been done away with our culture. I would be citing that Sabrimala case and like the places of the Worship Act. Through that we have been controlled, we have been like regulated like none other. We were having the system, we were having the self-reliant system, and we have been made to done away with that. We have been regulated in such a manner that we are like doing away with our own cultures, and that we are not able to follow. It is not so that we have never like accepted any reforms. We were like following the Sati Pratha system, like that ill practices came into the Indian legal system, but we done away with that. Like in many cases, like we were having this adultery system, the Supreme Court like ruled in favor of against that adultery laws 497 of the IPC. So we, whenever it was required, that we have done away with that system. But through the legislation, through the judicial pronouncements, it's like our own culture or our own traditions is snatched, that we are not going to accept. That because everything cannot be ruled in like on the basis of rationality or the basis of traditionality. There must be some like instincts of the faith, some instinct of the emotions that is attached. Once like I was teaching in some university, and one like a student from some Nigeria, she was like eating beef. She called and said, why like we can't eat beef? I told them, can you eat the dog which you are like, the pet dog which you are like keeping? She told that, no sir, like we were having this emotions, we set of emotions that attached to that dog, that cat which we are like having as pet. So I told that cow and that like
animals which we are like having in our home, that is like having the same innocence which you are having with your dog and you are having with your cat. So how we can allow that? In your like culture or in your traditions you are like protecting that. In our culture we are protecting the cows as the pet like animal, and cow is like giving something to us, dog is not giving something to us. So she accepted and she like told me that sir, do not tell any more because I am going to be a veg now, or I am going to be a vegetarian now. So everything cannot be protected, or everything cannot be regulated in it like by the law or the legal system. Legal system is there to remove the chaos, to like or the functions of the law is to maintain the law and order, but the functions of the law is not to interfere into our day-to-day activities, into our taste, into our culture. And if it is interfering, I would say that it is the time we should come forward and we should like speak, or we should write in like favor of those culture, in favor of those traditions, because we all are the young persons here. So if we are like coming forward and we are telling that we need not any rationality is required. Whenever like something is come, like 377 was reformed, this 397 was reformed, and we accepted that. Even like the organizations which is organizing, they came forward, ABVP came forward, and they accepted that, okay, we are accepting those on the basis of rationality. But through the Places of Worship Act, even like the government is again and again, not like on the central level, but in Kerala I came to know that the government is continuously trying to regulate those temples and continuously trying to snatch the property which is owned by those temples. So it may not be accepted on the basis of the rationality. So everything cannot be tolerated on the basis of rationality, and law or legal system must protect those like emotions, those faith. You must be aware that in the Hindu Succession Act, in many like legislations, our like culture has been protected, or like many marriages have been allowed because it was the culture, it was the customs of that region. So while like many other faiths or many other beliefs which have been tempered by those legislations, that cannot be tolerated. So with this, because Vishnu Shankar is there, so I must say that we should hear him, because he is having, or he is walking in this field. So I will be saying that we will be listening him and we will be getting some. Thank you so for the insight. Now I would like to invite our eminent speaker of the session, Vishnu Shankar ji, to enlighten us with the day's topic. धर्म संस्थापना के देवता भगवान श्री कृष्ण के चरणों में मेरा नमन। परात्पर गुरु डॉक्टर जैन बालाजी आठवले के चरणों में मेरा नमन। और आज यहाँ पे जो आप लोगों ने मुझे अवसर दिया, एक युवा वकील को एक युवा सम्मेलन में बुला के आपने जो अवसर दिया कि मैं आप लोगों से इंटरेक्ट करूं और एक बहुत इम्पोर्टेंट विषय पे अपनी बात रख सकूं, उसके लिए ऑर्गेनाइजर्स को और आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद कि आप लोग यहाँ पे आए और इस बहुत ही इम्पोर्टेंट विषय पे हम लोग आज चर्चा और विमर्श करने वाले हैं। और अपनी बात को शुरू करने से पहले कि जैसे कि अभी मेरे से पहले वक्ता ने, पूर्व स्पीकर ने इंडियन लीगल सिस्टम के कॉलोनाइजेशन के बारे में बात की, बिल्कुल ये बात मैं वहीं से अपनी बात को शुरुआत करूंगा, क्योंकि जो हम लड़ाई लड़ रहे हैं उस लड़ाई लड़ने में सबसे इम्पोर्टेंट चीज है, आपको वो चीज समझ में ही नहीं आएगी अगर आपका माइंडसेट कॉलोनियल है। अगर आप भारत की जो धारणा है, हमारे जो धर्मशास्त्र है, अगर आप उसको इग्नोर करके एक सेकुलर लीगल सिस्टम चलाएंगे तो जो बात हम बोल रहे हैं वो आपको कभी समझ में नहीं आएगी, वो व्यू पॉइंट आप कभी उसको अप्रिशिएट ही नहीं करेंगे। मैं अपने सीनियर
और जो वरिष्ठ हैं, फैकल्टी मेंबर है, उनसे थोड़ा सा बस डिसएग्री करना चाहता हूँ एक पॉइंट रख के, और उसके बाद अपनी बात को आगे रखूंगा। देखिए, जब हम शबरीमाला के केस की बात करते हैं, यहाँ पे मेरी बहनें भी बैठी हैं, मैं एज ए लॉयर कभी नहीं मानता कि वो 5 दिन जहां पे विमेन मेंस्ट्रुएट कर रही होती है वो अपवित्र होती है, impure। मैं बात कभी नहीं मानता। और शबरीमाला में मैं आपको एक बताना चाहता हूं, ये एक मिसनोमर है सोसाइटी में कि शबरीमाला में मेंस्ट्रुएटिंग विमेन को जाने के लिए प्रोहिबिशन था। नहीं, जो 10 साल की एज से लेके 60 इयर्स की एज तक की विमेन है उनको जाने के प्रतिबंध था। मेंस्ट्रुएशन उसका एक पार्ट है बट नॉट द सोल पार्ट, और पार्ट मेंस्ट्रुएशन भी नहीं है, ये मिसनोमर है। पार्ट है जो देवता का नियम है वो लागू होता है। जैसे फॉर एग्जांपल, अगर अपनी बात को एग्जांपल से समझाना चाहूं, अगर आज हम एक शिव जी के मंदिर में जाते हैं और अगर आज आप एक कृष्ण भगवान के विष्णु जी के मंदिर में जाते हैं, आप परंपरा में और कल्चर में बहुत बड़ा अंतर देखेंगे। जहां पे एक तरफ सिर्फ जल और बाकी तरह की आराधनाएं और अर्चना की जाती हैं, और एक जो वहां पे प्रिंसिपल डेटी है उनका नियम फॉलो किया जाता है। उसी तरह से अगर आप बांके बिहारी मंदिर चले जाएंगे तो आप वहां पे देवता को छू भी नहीं सकते, आप दर्शन करके बाहर आ जाएंगे। तो शबरीमाला के केस में जो आर्गुमेंट था शास्त्रीय तरफ से वो यही था कि जो देवता का नियम है वो लागू होगा। जो देवता वहां पे बैठे हुए हैं वो नैष्ठिक ब्रह्मचारी है, आजीवन ब्रह्मचारी। तो आजीवन ब्रह्मचारी देवता एक स्त्री का दर्शन नहीं लेना चाहते हैं, ये लॉजिक था। लॉजिक मेंस्ट्रुएशन नहीं था, उसको गलत तरह से एक जेंडर जस्टिस इशू बना के। और मैं आपको ये भी बताना चाहता हूं, तमिलनाडु और साउथ में से बहुत सारे मंदिर हैं जहां पे मैन अलाउड नहीं है, बहुत सारे ऐसे मंदिर हैं। तो ये मैं आपके सामने बात रखना चाहता हूं कि जब आप मंदिरों की बात करते हैं तो हमें सबसे पहले जो मूलभूत चीज है वो उसको समझना पड़ेगा कि जब हम मंदिर की बात कर रहे हैं तो जो देवता का नियम है, जो प्रिंसिपल डेटी का नियम है वो लागू हो, जिस तरह से उनकी पूजा अर्चना होती है। जैसे फॉर एग्जांपल, अगर आप महाकाल जाएंगे तो वहां सुबह 4 बजे भोर में भस्म आरती शुरू हो जाती है, पर अगर आप किसी कृष्ण मंदिर में जाएंगे तो कोई कृष्ण मंदिर आपको सुबह 4 बजे खुला नहीं मिलेगा। हमेशा कृष्ण मंदिर का कंसेप्ट है 8 बजे से पहला दर्शन होता है, 9 बजे से 1 बजे शयन होता है, फिर 5 बजे दोबारा दर्शन शुरू होता है और रात में 9 बजे दोबारा शयन हो जाता है। तो ये देवता का नियम है। और इस कॉलोनियल लीगल सिस्टम में जो सारी बातें आज हम डिस्कस करने वाले हैं उसमें ये बहुत जरूरी है कि हम पहले अपने शास्त्रीय नियमों को और महत्व को समझें और किस तरह से प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट उसमें आड़े आ रहा है, बाधा बन रहा है, और वक्फ एक्ट कैसे बाधा बन रहा है, ये मैं आपको बताना चाहता हूं। पर इन सारी बातों को बताने से पहले और इस लीगल पहलू को समझाने से पहले मैं आपसे वो दुख और दर्द शेयर करना चाहता हूं जो आज सनातन समाज महसूस कर रहा है और झेल रहा है। और अगर मैं काशी के केस का उदाहरण दूं, जब हमने वहां पे काशी के केस में सिविल सूट दायर किया और हमने ये कहा कि जो हमारी 5 महिलाएं हैं जिनको मैं रिप्रेजेंट कर रहा था, उनको यहाँ पे पूजा का अधिकार है अपने बाबा आदि विशेश्वर का, तो वो सिविल सूट एक्सेप्ट किया गया। और हमने वहां पे कहा कि उस तथाकथित मस्जिद का जो स्वरूप है वो मस्जिद का स्वरूप नहीं है, वो एक हिंदू मंदिर का स्वरूप है, और इसको एग्जामिन करने के लिए आप एडवोकेट कमिश्नर नियुक्त करिए। एडवोकेट कमिश्नर क्या होता है? आज अगर कोर्ट को किसी बात का जुडिशियल संज्ञान लेना है तो कोर्ट कैसे उसका जुडिशियल संज्ञान लेगा? ना कोर्ट व्हाट्सएप मैसेज का संज्ञान लेगा, ना जो वेबसाइट है या जो यूट्यूब चैनल है वो तो ऑब्वियसली जैसा उसकी जुडिशियल नोटिस नहीं लेंगे। तो कोर्ट की आंख और कोर्ट की जो ईयर्स है, आईज एंड ईयर्स ऑफ द कोर्ट होता है एडवोकेट कमिश्नर, जो कभी भी कहीं जाके ग्राउंड रिपोर्ट देता है कि हाँ साहब वहां पे ये फैक्चुअल पोजीशन है। इसी बात को ध्यान में रखते हुए माननीय न्यायालय ने वहां पे सिविल जज सीनियर डिवीजन साहब ने एडवोकेट कमिश्नर नियुक्त किया। बहुत बड़ा हंगामा किया गया पूरे देश में कि नहीं, एडवोकेट कमिश्नर नहीं नियुक्त होना चाहिए। क्यों नहीं नियुक्त होना चाहिए ये हमें भी नहीं पता। 6 और 7 तारीख को जब वहां पे 6 और 7 मई 2022, आज से सिर्फ
6 महीने पहले जब वहां पे सर्वे होना था, भारी मात्रा में वहां पे मुस्लिम समाज के लोग आए, एक धर्म विशेष के नारे लगाए गए, जो कमीशन की पूरी कार्रवाई थी उसको रोकने की कोशिश की गई, और 7 तारीख को एक ऑब्जेक्शन दिया गया कि एडवोकेट कमिश्नर यहाँ पे नहीं बैठने चाहिए, यहाँ पे नहीं जाने चाहिए, बायस्ड है। तो एडवोकेट कमिश्नर ने भी यही कहा कि अभी तो हमने इस तथाकथित मस्जिद के आउटर एरिया का सर्वे किया है, बायसनेस की बात कहां से आती है? हर एक चीज वीडियोग्राफी हो रही है, हर एक चीज की रिकॉर्डिंग हो रही है, तो यहाँ पे बायसनेस की बात कहां से आती है? बहरहाल उन्होंने ये ऑब्जेक्शन किया। 12 मई को ऑनरेबल सिविल जज सीनियर डिवीजन ने ऑर्डर पास किया और ये कहा कि हम 2 और एडवोकेट कमिश्नर नियुक्त कर रहे हैं और हर एक चीज की वीडियोग्राफी और फोटोग्राफी की जाएगी। 12 तारीख की कमीशन के बाद 14 और 15 तारीख को कमीशन हुआ। मैं आपको बताना चाहता हूं, और इस फैक्चुअल बैकग्राउंड में जो मैं आपके सामने पेश कर रहा हूं, रख रहा हूं, इस फैक्चुअल बैकग्राउंड में आप वक्फ एक्ट और प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट के तहत जो धोखाधड़ी हो रही है उसको समझने की कोशिश करिएगा। जब हमने 14, 15 और 16 मई को उस तथाकथित ज्ञानव्यापी मस्जिद का सर्वे किया, तो उस मस्जिद की वेस्टर्न दीवार चीख चीख के कह रही है कि वो एक हिंदू मंदिर का भग्नावशेष है। आप सबने देखा ही होगा। साथ ही साथ जो वहां पे 3 गुंबद है, उन तीनों गुंबद के नीचे हिंदू मंदिर का शिखर है जिसको काट के रखा हुआ है। हिंदू मंदिर के शिखर को काट के उसके ऊपर गुंबद बनाया हुआ है। जब हम नीचे गए तहखाने में तो वहां पे संस्कृत के श्लोक लिखे हुए, देवी देवताओं को जो सब श्राइन्स होते हैं रखने के लिए जो आले बने होते हैं, आप किसी मंदिर में जाते हैं तो बहुत सारे छोटे छोटे देवी देवताओं को रखने के आले होते हैं, वो बने हुए हैं। पिलर्स पे घंटियां बनी हुई है, कटी कटी मूर्तियां अंदर पड़ी हुई है। और हद तो तब हो गई जब मैं उस तथाकथित मस्जिद के अंदर गया, क्योंकि वो रेड जोन में आता है तो वहां पे आप पेन भी नहीं ले जा सकते हैं। तो एक वहां पे पोस्टर लगा हुआ था, एक कैलेंडर लगा हुआ था और उस कैलेंडर पे लिखा था ज्ञानव्यापी मस्जिद। जब उस कैलेंडर को उठाया तो उसके नीचे स्वास्तिक का चिन्ह मिला, स्वास्तिक के चिन्ह, डमरू के चिन्ह, जितने एक हिंदू मंदिर के चिन्ह हो सकते हैं, वो पूरी तथाकथित मस्जिद कह रही है चीख चीख के कि ये मस्जिद किसी इस्लामिक आर्किटेक्चर का पार्ट नहीं हो सकती। और यहाँ पे पॉल साहब भी बैठे हैं, वो इस चीज को काफी क्लोजली स्टडी करते हैं और मैं चाहूंगा कि उसको इस एंगल से भी देखें। वो कोई भी इस्लामिक आर्किटेक्चर का पार्ट नहीं हो सकता है, और एक हिंदू मंदिर के स्ट्रक्चर पे उसको मैं आपके सामने बात कहना चाहता हूँ, उसको कन्वर्ट करके जबरन एक मस्जिद का स्वरूप देने की कोशिश की गई। साथ ही साथ जब हमने ये 14 और 15 तारीख को सर्वे कर लिया, तो जब मैं थोड़ा सा आगे बढ़ा और मैंने देखा कि वहां पे एक वजू करने का एरिया मस्जिद के फर्स्ट फ्लोर पे बीचों बीच बना हुआ है, तो वहां पे उस वजू के बीच एक गोल कलर की एक कुएं जैसी दीवार थी। तो वहां पे जो केयर टेकर थे एजाज भाई, मैंने उनसे कहा कि एजाज भाई इसका थोड़ा पानी कम करिए, हम लोग इसमें यहाँ बीच में जाकर देखना चाहते हैं कि यहाँ पे है क्या। तो एजाज भाई ने कहा कि यहाँ अगर पानी कम करेंगे तो मछलियां मर जाएंगी, बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। तो फिर मैंने भी कहा कि नहीं भाई, हम लोग जैन लोग हैं, हम लोग बिना हिंसा किए हुए ये कमीशन की कार्रवाई कंप्लीट करेंगे। तो हमने राज्य सरकार से रिक्वेस्ट की कि भाई आप ऑक्सीजन की व्यवस्था करिए कि इनकी मछलियां ना मरे। राज्य सरकार ने भी बहुत कोऑपरेट किया और ये तय हुआ कि ठीक है, ऐसा करेंगे कि आपकी मछलियां ना मरे और बिना मछलियां मरे कमीशन की कार्रवाई पूरी की जाए। और 2 घंटे का कमीशन नियुक्त किया गया 16 तारीख को, 16 मई 2022 को। कमीशन 2 घंटे के लिए होना था, सुबह 8 बजे से 10 बजे तक। ऑक्सीजन की व्यवस्था की गई और पानी जो है 2 फीट कम किया गया। 3 फीट का वो वजू टैंक है, 2 फीट पानी कम किया गया। एक भी मछली नहीं मरी, सारी मछलियां इंटैक्ट हैं। और जब हम उस वजू टैंक में बीचों बीच पहुंचे तो यकीन मानिए मैं और मेरी लीगल टीम थोड़ी देर के लिए भूल गई कि हम वकील हैं। मैं चीख उठा, चिल्ला उठा अपने हालात को देख के, नमः पार्वती पते। और उसी क्षण निर्णय कर लिया कि आज ये आखिरी दिन है, आज ये क्षण आखिरी दिन है। मंडे का दिन था, बुद्ध पूर्णिमा का, 16 मई 2022। हिंदुस्तान के इतिहास में वो स्वर्णिम दिन है
जब हमने अपने आदि विश्वेश्वर बाबा को दोबारा पाया, जो 12 ज्योतिर्लिंग हैं, उन 12 ज्योतिर्लिंगों में से 5 ज्योतिर्लिंग स्वयंभू हैं, और उन 5 स्वयंभू ज्योतिर्लिंग में भी जो सबसे पहला ज्योतिर्लिंग है वो आदि विश्वेश्वर है। मैं आपके सामने ये गलत बयानी नहीं करना चाहता हूं आज की स्टेज पे कि यही ज्योतिर्लिंग आदि विश्वेश्वर का है कि नहीं है, पर मैं एक बात जरूर कहना चाहता हूं जो मैंने अपनी नजरों से देखा है कि वो शिवलिंग है। और हमने उसी समय निर्णय कर लिया कि शिवलिंग को हम आज इसके बाद इसके ऊपर हम वजू नहीं होने देंगे। हम माननीय सिविल जज सीनियर डिवीजन के सामने गए, मैंने वहां पे प्रार्थना की, प्रेयर की कि उस वजू एरिया को सील किया जाए। माननीय सिविल जज सीनियर डिवीजन ने उस प्रार्थना को मानते हुए ऑर्डर 39 रूल 3 के तहत एस पार्टी इंटरिम ऑर्डर पास करके उस वजू एरिया को सील करने का काम किया, क्योंकि वो एक बहुत इंपॉर्टेंट केस प्रॉपर्टी है जिसके आधार पे काशी विश्वनाथ का एक केस एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है, जिसमें वन ऑफ द एक इंपॉर्टेंट एविडेंसेस होंगे और उसको डिस्ट्रॉय करने की सारी कोशिश की जा सकती है। इन सारी चीजों को देखते हुए माननीय सिविल जज सीनियर डिवीजन साहब ने उस एरिया को सील किया। सुप्रीम कोर्ट ने 17 मई के ऑर्डर से उस सीलिंग के ऑर्डर को कंटिन्यू रखा। अभी जैसा कि आप जानते हैं कि 11 नवंबर को सुप्रीम कोर्ट ने उस इंटरिम ऑर्डर को दोबारा कंटिन्यू किया टिल फर्दर ऑर्डर्स, और आज की स्थिति यह है कि वहां पे जो शिवलिंग का एरिया है जहां पे हमें शिवलिंग बरामद हुआ कमीशन की कार्रवाई के दौरान, वो सील्ड है, उसमें कोई वजू नहीं हो रहा है, और अब आगे हमें उसके दर्शन पूजा के अधिकार के लिए अपनी लीगल लड़ाई लड़नी है। अब जब ये सारे फैक्टर्स चीख के, और मैंने सारी भूमिका आपके सामने इसलिए रखी कि जब ये सारे फैक्टर्स चीख के हम लोग को ये कह रहे हैं और बता रहे हैं कि वो मंदिर है, और हम लोग इतने सारे आर्गुमेंट दे रहे हैं काशी विश्वनाथ के केस में, अपना बिलीफ, स्कंद पुराण, शिव महापुराण, जितने फॉरेन ट्रैवलर्स आए, राइटर्स आए हैं, उन सारे लोगों के द्वारा हम ये सारी जो किताबें हैं राणा पीवी सिंह की, जेम्स प्रिंसेप की, ये सारी किताबें जब हम बताने की कोशिश कर रहे हैं, इन सारे आर्गुमेंट्स के बीच आप एनालाइज करिए कि मुस्लिम पक्ष का क्या आर्गुमेंट। हम तो बहुत सारे प्रूफ दे रहे हैं, हम तो ये भी प्रूफ दे रहे हैं कि स्कंद पुराण में ये लिखा हुआ है, शिव महापुराण में लिखा हुआ है कि काशी सबसे पहली नगरी है और विश्वेश्वर सबसे पहले देवता है। हम तो ये भी प्रूफ दे रहे हैं जहां पे भगवान शिव ने कहा है कि इस 5 कोस के एरिया को मैंने स्वयं बसाया है और मुक्ति लोगों को यहीं पे मिलेगी, इसीलिए उस एरिया को अभिमुक्त क्षेत्र कहा जाता है। हम तो ये भी प्रूफ दे रहे हैं कि वहां पे जेम्स प्रिंसेप और एएस एल्ट्रेकर ने कहा है कि 12 सितंबर 1669 को मंदिर तोड़ने के बाद भी हिंदुओं ने कभी अपना अधिकार वहां पे नहीं छोड़ा और मस्जिद की चौखट पे पूजा करते रहे, ये मानते हुए कि हमारे आराध्य हमारे ईश्वर हैं। हम तो 1809 के डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट गॉडसन का भी प्रूफ दे रहे हैं, जहां पे डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट गॉडसन ने कहा है कि ये जगह हिंदुओं को सौंप दी थी। हम तो ये भी प्रूफ दे रहे हैं कि दीन मोहम्मद के केस में उन 12 हिंदुओं ने उस समय ब्रिटिश सरकार की तरफ से गवाही दी कि इन सारी जगहों पे इन स्थानों में तथाकथित मस्जिद की हम पूजा करते चले आ रहे हैं, इसको वक्फ डिक्लेयर मत करें। हम तो यहां तक भी प्रूफ दे रहे हैं कि 1983 में यूपी काशी विश्वनाथ एक्ट ने सेक्शन 4 सब क्लॉज 9 ने उस पूरे परिसर को मंदिर परिसर घोषित कर दिया है और इसलिए उसका कब्जा लिया है। हम तो ये सारे प्रूफ दे रहे हैं, पर सवाल यह है कि आज मुस्लिम साइड का केस क्या है, इस तरफ एनालाइज करने की भी कोशिश है। क्योंकि इस कॉलोनियल लीगल सिस्टम में जब भी एक सत्य और न्याय की लड़ाई लड़ी जाती है तो सवाल जो सत्य और न्याय की लड़ाई लड़ रहा है उनसे तो पूछे जाते हैं, पर जो उस चीज को डिफेंड कर रहा है, झूठ को डिफेंड कर रहा है, उसके पास क्या तर्क है? तो सबसे पहला तर्क आता है प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट। और प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट का आर्गुमेंट क्या है? पहले बात तो मैं आपको ये बताना चाहता हूं, काशी के केस में एक सिविल सूट दायर किया गया था 1991 में। उस सिविल सूट का नंबर है सिविल सूट नंबर 610 ऑफ 1991। और जब वो सिविल सूट दायर किया गया था, मैं आपके सामने ऑन रिकॉर्ड ये बात कहना चाहता हूं, 30 साल से वो सिविल सूट इसी कश्मकश में आगे नहीं बढ़ पाया, एविडेंस की स्टेज तक में नहीं आ पाया, सिर्फ इसी कश्मकश में कि प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट से बाधित है।
इनिशियली प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट का आर्गुमेंट लिया गया, सिविल जज सीनियर डिवीजन ने सेक्शन 9 ऑफ सीपीसी में उस सिविल सूट को रिजेक्ट किया, उसके अगेंस्ट हिंदू साइड ने अपील रिवीजन फाइल किया डिस्ट्रिक्ट जज साहब सामने। डिस्ट्रिक्ट जज साहब ने कहा कि नहीं, धार्मिक स्वरूप तय करना जरूरी है, और अभी मैं उस बात पे आऊंगा कि धार्मिक स्वरूप का क्या मतलब होता है। इसके बाद मस्जिद कमेटी ने उसको इलाहाबाद हाई कोर्ट में 1997 में चैलेंज किया, और 1997 से आज तक इलाहाबाद हाई कोर्ट में वो केस पेंडिंग है, अभी भी उसमें फैसला नहीं आया। और हमने जब इसमें केस फाइल किया तो हमने प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट को कैसे काउंटर किया, और प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट की कमर तोड़ने का जो काम किया है वो एक लीगल इंटरप्रिटेशन है मेरी आज के इस आपके साथ संवाद का, और दूसरा लीगल इंटरप्रिटेशन है कि प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट किस तरह से एक नैरेटिव के तहत इस देश में चल रहा है। और जो लोग प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट की बात करते हैं, जो बैरिस्टर भी हैं, काफी रिनाउंड बैरिस्टर्स हैं, वो प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट को बिना देखे हुए, बिना अध्ययन किए हुए, सिर्फ एक नैरेटिव पे लोगों को गुमराह करने का काम कर रहे हैं कि प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट लोगों को रेस्टोरेशन का राइट छीनता है। मैं बात ज्यादा आगे नहीं बोल पाऊंगा, क्योंकि पहले मैं अपने सीनियर और इंडिया के एडिशनल सॉलिसिटर जनरल विक्रम बनर्जी साहब का स्वागत करना चाहता हूं यहाँ पे। आपके सामने कैसे तो जब प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट का हम लोगों ने अध्ययन किया तो सबसे पहले हमने प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट की कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज करने का काम किया। और प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट को अगर एनालाइज करेंगे तो उसमें दो लिंब ऑफ आर्गुमेंट है, और जो मैंने सुप्रीम कोर्ट में प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट को चैलेंज किया है, प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट सेक्शन 4 सब क्लॉज 2 को हमने चैलेंज किया सुप्रीम कोर्ट के साथ। प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट का सेक्शन 3 ये कहता है कि कोई किसी जगह कोई रिलीजियस डिनोमिनेशन किसी और रिलीजियस डिनोमिनेशन के एरिया को कन्वर्ट नहीं करे 15 अगस्त 1947 के बाद। और मैं आपके सामने उदाहरण देना चाहता हूं कि 15 अगस्त 1947 के बाद 1991 एक्ट आने तक कश्मीर में और इंडिया के इतने सारे कोनों में ऐसे बहुत सारे उदाहरण हैं जहां पे बहुत सारे हिंदू मंदिरों को, और मेरे पास केस स्टडीज भी हैं जहां पे बहुत सारे हिंदू मंदिरों को कन्वर्ट कर दिया। तो सेक्शन 3 का वायलेशन किया, क्योंकि प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट ने जो कट ऑफ डेट दी है वो दी है 15 अगस्त 1947 की, कि 15 अगस्त 1947 को जो जिस जगह का धार्मिक स्वरूप है वो वैसे ही रहेगा। और धार्मिक स्वरूप के वर्ड यहाँ पे जो रिलीजियस कैरेक्टर वर्ड है उसका इंटरप्रिटेशन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मेरा कहने का पर्पस ये है कि प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट सेक्शन 3 रिलीजियस डिनोमिनेशन वर्ड यूज करता है। रिलीजियस डिनोमिनेशन मतलब जैसे अगर कोई जगह एक शिव मंदिर है और अगर आप उसको एक विष्णु मंदिर में या उसको आप किसी और हिंदू धर्म के मंदिर में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो वो भी सेक्शन 3 से बाहर है, क्योंकि दैट्स अ रिलीजियस डिनोमिनेशन ऑफ अ शिवाइट और ऑफ अ वैष्णवाइट और ऑफ अ साई बाबा भक्त कि आप उसका कैरेक्टर वैसे ही इंटैक्ट रखें। इसलिए प्रॉब्लम प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट में सेक्शन 3 में नहीं है जहां पे रिलीजियस डिनोमिनेशन वर्ड यूज्ड है। प्रॉब्लम प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट में सेक्शन 4 में और स्पेसिफिकली सेक्शन 4 सब क्लॉज 2 में है, क्योंकि सेक्शन 4 सब क्लॉज 2 ये शब्द प्रयोग करता है जो लोगों का कोर्ट जाने का अधिकार, जुडिशियल रिव्यू का अधिकार छीनता है। और उसमें बात लिखी हुई है कि अगर आप करते हैं और राइट ऑफ रेस्टोरेशन मांगते हैं तो 15 अगस्त 1947 के बाद आप कोर्ट नहीं जा सकते हैं, और जो भी सूट्स हैं चाहे वो सूट की स्टेज पे हो, अपील की स्टेज पे हो, रिवीजन की स्टेज पे हो, वो सारी चीजें अवेट कर जाएं। तो ये, और इसीलिए राम मंदिर को सेक्शन 5 में एग्जेम्प्ट किया गया। तो ये जो सेक्शन है 4 सब क्लॉज 2 ये एक प्रॉब्लमेटिक सेक्शन है, और ये एक तरह का एक लीगल मिसनोमर और एक तरह का एक नैरेटिव को आगे बढ़ाने का काम कर रहा है। और इसको तोड़ने का जो उपाय है वो हमने
बनारस की सिविल अदालत में उसको हमने आर्ग्यू किया और डिस्ट्रिक्ट जज ऑफ वाराणसी ने 12 सितंबर 2022 को ये होल्ड किया कि ज्ञान व्यापी के केस में प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट अप्लाई नहीं होता। उस ऑर्डर के अगेंस्ट इस समय मस्जिद कमेटी अंजुमन इंतजामिया दे हैव फाइल्ड अ रिवीजन पिटीशन व्हिच इज पेंडिंग बिफोर द इलाहाबाद हाई कोर्ट, जिसकी अगली सुनवाई 22 नवंबर को है। पर जो बेसिक थ्रस्ट ऑफ आर्गुमेंट था हमारा डिस्ट्रिक्ट जज साहब वाराणसी के सामने और साथ ही साथ सुप्रीम कोर्ट में जब इसकी एक कनेक्टेड कोलैटरल प्रोसीडिंग सुप्रीम कोर्ट में आई थी कि प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट या कोई भी एक्ट जो देवता का मूलभूत अधिकार है, जो देवता के राइट्स हैं, जो भक्त के राइट्स हैं, उसको आर्ग्यू करने के लिए रिस्ट्रिक्शन नहीं लगा सकता। राम मंदिर के केस में ये आर्गुमेंट बहुत एक्सटेंसिवली हम सबके सीनियर माननीय पराशर साहब ने किया और उन्होंने एक उदाहरण दिया चिदम्बरम मंदिर का जो तमिलनाडु में है, जहां पे कोई डेटी मौजूद नहीं है पर तब भी वहां पे गर्भगृह में कर्टन खोल के पूजा की जाती है और कर्टन बंद किया जाता है। और राम मंदिर के केस में पैरा 116 117 में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने बात होल्ड की कि हो सकता है कि मंदिर नष्ट हो जाए किसी भी तरीके से, अर्थक्वेक में, बाढ़ में, कोई आक्रांता आकर उसको तोड़ दे, पर जो मंदिर बनाने का संकल्प होता है वो अमर होता है, वो अमिट होता है। जो आदमी संकल्प लेता है कि आज इस जगह में अपनी संपत्ति, मंदिर की संपत्ति को दान करता हूं और मैं संकल्प लेता हूं, जो लीगल ऑब्लिगेशन है, जो लीगल वाव है, उसको सुप्रीम कोर्ट ने लीगल एंटिटी माना। जस्ट लाइक कंपनी, जस्ट लाइक शिप। आज शिप एक लिविंग एंटिटी नहीं है, कंपनी एक लिविंग एंटिटी नहीं, पर हमने कंसेप्ट समझा है कि डायरेक्टर्स मे कम और मे गो बट द कंपनी विल गो ऑन। उसी तरह से जो एक भक्त ने अपने ईश्वर को एक संपत्ति दान की है और मंदिर बनाने का संकल्प लिया है, वो संकल्प अमर है, अमिट है और उसकी लीगल ऑब्लिगेशन। अब इस बैकग्राउंड में काशी का केस हो, चाहे मथुरा का केस हो, चाहे भोजशाला का केस हो, चाहे टीले वाली मस्जिद का केस हो, चाहे कुतुब मीनार के अंदर कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद का केस हो, इन सारे केसेस को एनालाइज करने की जरूरत है और ये अपने आप से सवाल पूछने की जरूरत है कि अगर कोई किसी जगह एक हिंदू मंदिर की स्थापना हो चुकी है और सुप्रीम कोर्ट में जो मैंने आपको अभी जजमेंट का पैरा 116 117 बताया, तो अगर उस पर कोई गलत कब्जा कर लेता है, जबरन कब्जा कर लेता है, तो ऐसा क्यों है कि हम उसके लिए कोर्ट नहीं जा सकते हैं। और इसी पे सुप्रीम कोर्ट के सामने जब ये कोलैटरल प्रोसीडिंग्स में आर्गुमेंट्स हो रहे थे, तब एक ऑब्जर्वेशन आया कि प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट रिलीजियस कैरेक्टर के लिए एविडेंस देने के लिए कोई बाड़ नहीं लगा। मतलब ये हुआ कि अगर आज मैं ये बताने की कोशिश कर रहा हूं कि ज्ञान व्यापी मस्जिद नहीं है, वो एक हिंदू परिसर, हिंदू मंदिर का भग्नावशेष है और वो एक हिंदू मंदिर का परिसर है, तो मुझे क्या क्या आर्गुमेंट्स करने के लिए लेवरेज मिलता है, मुझे क्या क्या आर्गुमेंट्स करने के लिए राइट मिलता है। सबसे पहला लेवरेज मिलता है ये आर्गुमेंट करने का कि वहां पे मेरा शास्त्रिक महत्व है, शास्त्रिक नियम है उस जगह, जो शिव महापुराण, स्कंद पुराण, जैसा कि मैंने अभी आपको पहले बताया, लिखा हुआ। मुझे ये आर्गुमेंट मिलता है करने का कि उस जगह पे हिंदुओं का, और वो एविडेंस देने का मौका मिलता है कि उस जगह हिंदुओं का कंटिन्यूअस बिलीफ, फेथ और आस्था टाइम मेमोरियल से और आज तक चलती चली आ रही है। मुझे ये आर्गुमेंट करने का लेवरेज मिलता है कि वहां पे जो हमने पाया कमीशन की कार्रवाई के दौरान, वो फाउंटेन नहीं है, वो शिवलिंग है। मुझे ये आर्गुमेंट करने का लेवरेज मिलता है कि वो शिवलिंग की एएसआई द्वारा जांच कराई जाए। मुझे ये एविडेंस देने का लेवरेज मिलता है कि मैं सारी हिस्टोरिकल बुक्स, जिसकी सेक्शन 57 ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट में एक हिस्टोरिकल वैल्यू है, वो सारी बुक्स और ट्रैवल अकाउंट्स कोर्ट के सामने पेश कर सकूं। और उसके बाद जब ये सारे आर्गुमेंट्स मैं कोर्ट के सामने एस्टैब्लिश कर दूंगा तो और प्रूफ टू द हिट कर दूंगा कि नहीं, ये एक हिंदू मंदिर है और इसका धार्मिक स्वरूप एक हिंदू मंदिर का है, तो वहां पे प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट अप्लाई नहीं हो। और एक बात और मैं आपके सामने रखना चाहता हूं
प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट एक बहुत ही मिस इंटरप्रेटेड एक्ट है, और जो लोग उसके बारे में बात करते हैं वो ये देखना, ये एनालाइज करने से भूल जाते हैं कि धार्मिक स्वरूप तय होना बहुत इंपॉर्टेंट है। और जो वर्ड रिलीजियस कैरेक्टर प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट में यूज्ड है, सेम वर्ड सेक्शन 16 ऑफ आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया एक्ट 1958 में रिलीजियस कैरेक्टर वर्ड यूज्ड है। मीनिंग देयर बाय, फॉर एग्जांपल अगर अपनी बात को मैं एग्जांपल से समझाना चाहूं, कोई व्यक्ति अगर एक मंदिर में आके नमाज पढ़ ले तो क्या मंदिर का धार्मिक स्वरूप बदल जाएगा? एक ही जवाब हो सकता है, नहीं बदल सकता। मंदिर का जो धार्मिक स्वरूप है वैसे ही रहेगा। और अगर कोई वाइस वर्सा आज कोई किसी मस्जिद में जाके पूजा कर ले, मूर्ति रख दे, तो क्या मस्जिद का धार्मिक स्वरूप बदल जाएगा? एक ही जवाब हो सकता है, नहीं बदल सकता। मस्जिद जो वंस अ मॉस्क ऑलवेज अ मॉस्क, अगर एक बार किसी ने कोई संपत्ति अल्लाह को डेडिकेट कर दी, वक्फ कर दी, तो उनकी रहेगी। तो यहाँ पे कैसे तय होगा ये केस, और ये सारे केसेस कैसे तय होंगे? ये सारे केसेस तय होंगे ऑन द फुटिंग कि हु इज प्रायर इन टाइम, पहले कौन आया। और इसीलिए सारी एविडेंसेस जो आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, ये सारी बातें मैं आपके सामने रख रहा हूं ये बताने के लिए कि उस जगह का धार्मिक स्वरूप एक हिंदू मंदिर का है। और प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट का जो पहलू है सेक्शन 4 सब क्लॉज 2, जो लोगों को कोर्ट जाने का अधिकार छीनता है और जुडिशियल रिव्यू का जो उसने छीनने का अधिकार लिया है, उन सारे केसेस को, वो सारी प्रोसीडिंग्स को जो अवेट हुई हैं, उसका वो वाला पार्ट अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, ऐसा हमारा एक लीगल आर्गुमेंट है। और इस लीगल आर्गुमेंट को दैट हैज फाउंड फेवर विद द ऑनरेबल कोर्ट डिस्ट्रिक्ट जज वाराणसी, और ऐसा ही एक जजमेंट डिस्ट्रिक्ट जज वाराणसी का पहले गया था 1997 में, जो इस समय रिवीजन पिटीशन में इलाहाबाद हाई कोर्ट के सामने पेंडिंग। क्योंकि सबसे मूलभूत सवाल ये है कि अगर किसी जगह एक मंदिर की, आप इस बात, और मैं इसके बाद अपने सेकंड टॉपिक पे आ रहा हूं, कि अगर किसी जगह किसी मंदिर की स्थापना हुई है तो इस्लामिक लॉ तो ये कहता है कि वंस अबव ऑलवेज अबव, तो हिंदू लॉ ये कहता है कि अगर एक बार कोई संपत्ति देवता में निहित हो गई, उसमें वेस्ट हो गई, तो वो समय के अंत तक देवता की रहती है, राजा भी उसे नहीं ले सकता। और इसीलिए इस इंपॉर्टेंट फैक्टर ऑफ हिंदू लॉ को और शास्त्रिक लॉ को आप हमें आर्ग्यू करने से नहीं रोक सकते हैं। और प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट जहां तक उसमें एक रोड़ा बढ़ने का काम कर रहा है, इसीलिए उसकी कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी हमने सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज की। अब सवाल आता है, ये सारे मैंने आपको आर्गुमेंट्स और ये सारी बातें इसलिए बताई कि हिंदू पक्ष का जो हम ये केसेस लड़ रहे हैं, इसमें हमारा क्या लेवल ऑफ आर्गुमेंट है और उनका क्या लेवल ऑफ आर्गुमेंट। तो एक प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट का ऑब्जेक्शन है जिसको हमने मीट किया, और पिछले 30 साल से कैसे ये केस लंबे चल रहा है इलाहाबाद हाई कोर्ट में। और दूसरा पहलू है वक्फ का। अब अगर मैं अपनी बात को उदाहरण से समझाना चाहूं, ज्ञान व्यापी के केस में मुस्लिम साइड ने एक आर्गुमेंट किया कि ये जो केस है ये सिविल कोर्ट ऑफ वाराणसी में चल ही नहीं सकता है क्योंकि वक्फ प्रॉपर्टी। तो सेक्शन 85 ऑफ द वक्फ एक्ट में ये वक्फ ट्राइब्यूनल जाना चाहिए, सिविल कोर्ट इसके ऊपर निर्णय नहीं दे सकता। और उसके लिए उन्होंने कोर्ट के सामने कुछ डॉक्यूमेंट्स पेश किए, कुछ डॉक्यूमेंट्स उन्होंने दाखिल किए। अब उस डॉक्यूमेंट में सबसे मार्वेलस बात यह है, उन्होंने एक डॉक्यूमेंट वक्फ रजिस्टर पेश किया और उस वक्फ रजिस्टर में लिखा था कि ये ज्ञान व्यापी, उनका जो प्लीडिंग थी वो ये थी कि ये वक्फ नंबर 100 है ज्ञान व्यापी मस्जिद, और इसीलिए ये एक वक्फ संपत्ति है और ये सिविल कोर्ट इसको निर्णय ना दे, ये वक्फ ट्राइब्यूनल जाए। वक्फ ट्राइब्यूनल में इस्लामिक लॉ के जानकार होते हैं, वो वक्फ एक्ट 1995 में लिखा हुआ है, हमें पता है, वो एक अलग विषय, उस पर मैं आऊंगा। पर जब हमने उस आप देखें किस तरह का फ्रॉड है, जब हमने उस डॉक्यूमेंट को एनालाइज किया और मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स की जब वेबसाइट हमने खंगाली, तो मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स की वेबसाइट पे वक्फ का गैजेट नोटिफिकेशन नील, ये कब वक्फ की गई, कब डेट, क्योंकि वक्फ अगर किसी को करना है तो किसी की संपत्ति होनी चाहिए। आज मेरी खुद की वक्फ लॉ क्या कहता है कि आज मेरी खुद की संपत्ति होगी एक मुसलमान की, सेल्फ एक्वायर्ड, अगर उसको आज मैं अल्लाह को डेडिकेट करता हूं तो वो एक वैलिड वक्फ होगी। तो पहली बात तो ये दिखानी है औरंगजेब ने क्या कभी कोई वैलिड वक्फ की कि नहीं की। और मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स की जो वेबसाइट है वक्फ मैनेजमेंट सिस्टम ऑफ इंडिया के तहत, उस माइनॉरिटी अफेयर्स की वेबसाइट में वक्फ के डेडिकेटर का नाम नील है, वक्फ के गैजेट नोटिफिकेशन का नाम जो कॉलम है वो ब्लैंक है, कब वक्फ हुआ वो डेट ब्लैंक है। और उसके बाद जब हमने उनके डॉक्यूमेंट का अध्ययन किया, बड़े दिन तक हम लोग कंफ्यूज रहे
और बड़ा परेशान रहे कि ये तो इन्होंने एक ऐसा डॉक्यूमेंट दिखाया जिससे केस में दिक्कत आ जाए। पर जब उसको अध्ययन किया, और ये पिताजी की काफी तपस्या रही, जब उसको अध्ययन किया तो पता चला वक्फ नंबर 100 के सामने लिखा हुआ है आलमगीर मस्जिद। मैं आपको बताना चाहता हूं बनारस में और इंडिया भर में आपको 100, 150, हजारों ऐसी मस्जिदें मिल जाएंगी जिस मस्जिद का नाम आलमगीर मस्जिद। और उस आलमगीर मस्जिद के आगे जो खसरा नंबर का कॉलम था वो ब्लैंक था। इस ज्ञान व्यापी का खसरा नंबर है 9130। और सबसे मजेदार बात यह है उस पूरे रजिस्टर में, वक्फ के रजिस्टर में जितने वक्फ की इंदराज हैं, जितनी वक्फ की रजिस्ट्रेशंस हैं, सब में खसरा नंबर लिखा हुआ। सिर्फ वक्फ नंबर 100 के सामने खसरा नंबर नहीं लिखा और लिखा है आलमगीर मस्जिद। बिंदु माधव मंदिर को जो तोड़ के वहां पे मस्जिद बनाई गई उसको भी आलमगीर मस्जिद कहते हैं। लखनऊ में ऐसी बहुत सारी मस्जिद हैं जिसको आलमगीर मस्जिद कहते हैं। और पहले तो मुस्लिम समाज के लोगों ने कोर्ट के सामने ये आर्गुमेंट लिया कि ये वक्फ बाय यूजर है। वक्फ बाय यूजर मतलब जहां पे आपको ये नहीं पता है कि कब डेडिकेट की गई, हम बहुत टाइम इमेमोरियल से इसको मस्जिद के रूप में यूज करते चले आ रहे हैं, इसलिए वक्फ बाय यूजर। पर ज्ञान व्यापी के हमारे वाले केस में उन्होंने आर्गुमेंट लिया और कोर्ट के सामने कहा कि इसको हमारे बादशाह आलमगीर ने तोड़ के बनाया है और ये आलमगीर मस्जिद। और कोर्ट के सामने हमने बात प्रूव की कि इसके सामने कोई इंदराज नहीं है, ये इस पर्टिकुलर प्रॉपर्टी के लिए रजिस्ट्रेशन नहीं है। और जो दीन मोहम्मद का केस हुआ सिविल सूट नंबर 62 ऑफ 1936, उस दीन मोहम्मद के केस में मुस्लिम समाज के लोगों ने इसको थ्रू आउट ज्ञान व्यापी मस्जिद के रूप में डिस्क्राइब किया है, आलमगीर मस्जिद का नाम ही नहीं लिया। तो आलमगीर मस्जिद का जो एक एंट्री है उसको आप ज्ञान व्यापी मस्जिद के रूप में पढ़ना चाहते हो, ये सारी बातें हमने रखी। और साथ ही साथ सुप्रीम कोर्ट का 2010 का जजमेंट कोट किया, ऑनरेबल जस्टिस कार्टू साहब का जजमेंट, ही वाज द ऑथर ऑफ द जजमेंट। और उसमें ये बात लिखी हुई है कि जो वक्फ एक्ट 1995 है वो नॉन मुस्लिम्स पे अप्लाई नहीं होती। ये सुप्रीम कोर्ट ने 2010 में जजमेंट दिया था और इसमें 1979 के जजमेंट को गोविंद राम को फॉलो करते हुए जो 3 जज बेंच जजमेंट था उसमें बात कही थी, उसी बात को रिक्रिएट किया 2010 में। तो इसी आधार पे जो वक्फ का आर्गुमेंट था वो रिजेक्ट किया गया 12 सितंबर के ऑर्डर से, और वो इस समय माननीय इलाहाबाद हाईकोर्ट के सामने। अब वक्फ एक्ट के कुछ प्रोविजंस मैं आपके सामने रखना चाहूंगा और उसके बाद अपनी वाणी को विराम दूंगा कि वक्फ एक्ट किस तरह से ड्रैकोनियनली काम कर रहा है। और वक्फ एक्ट की कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी हमने इलाहाबाद हाईकोर्ट में चैलेंज की है, केंद्र सरकार को नोटिस जारी किया ऑनरेबल इलाहाबाद हाईकोर्ट ने। वक्फ एक्ट का सेक्शन 4, 5 और 6 आप देखिए और इस चीज को एनालाइज करिएगा। वक्फ एक्ट और प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट के बीच में कंपैरिजन करिएगा कि एक तरफ तो प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट लोगों के कोर्ट जाने का अधिकार छीनता है अगर एक इस्लामिक इंटरप्रिटेशन माना जाए, और दूसरी तरफ वक्फ एक्ट 1995 के तहत किस तरह से एक पैरेलल मैकेनिज्म बनाया गया। मैं आज आपके माध्यम से पूछना चाहता हूं कि क्या किसी हिंदू मंदिर के लिए या किसी ईसाई के लिए या किसी जैन के लिए या बुद्ध के लिए, उनके मंदिरों के लिए या उनकी संपत्ति के लिए कोई सर्वे होता है? किसी को अगर कोई पता हो कि भाई कोई सर्वे होता हो, पर सेक्शन 4, 5 और 6 में वक्फ की संपत्ति के लिए सर्वे किया जाता है और सेक्शन 8 ऑफ वक्फ एक्ट 1995 में उस सर्वे का खर्चा राज्य सरकार वहन करती है। मतलब वो आर्टिकल 27 में जो टैक्स पेयर का पैसा है उसका डायरेक्ट वायलेशन है आर्टिकल 27 में। पर वक्फ का जितना ये सेटअप है उसका सर्वे किया जाता है, उस सर्वे का खर्चा राज्य सरकार वहन करती है। और सबसे बड़ी बदमाशी मैं आपको बताना चाहता हूं, सेक्शन 6 ऑफ वक्फ एक्ट में उससे पहले 2013 से पहले वहां पे वर्ड यूज था पर्सन इंटरेस्टेड। पर्सन इंटरेस्टेड मतलब अगर वो शिया वक्फ है या सुन्नी वक्फ है, उसकी अगर कोई झगड़ा है तो बेसिकली जो वक्फ एक्ट 1995 बना था वो झगड़े को सॉर्ट आउट करने के बना था कि अगर कोई पर्टिकुलर प्रॉपर्टी शिया वक्फ है कि सुन्नी वक्फ है। और जिसपे ये जजमेंट आया था मैंने आपको बताया 2010 का, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि वक्फ एक्ट 1995 नॉन मुस्लिम्स पे अप्लाई नहीं होता। पर कांग्रेस गवर्नमेंट ने उसमें बदमाशी की सेक्शन 6 में और उस पर्सन इंटरेस्टेड वर्ड को अमेंड करके पर्सन एग्रीव्ड कर दिया। और 2019 में जस्टिस अशोक भूषण साहब का जजमेंट आया जिसमें ये बात कही गई
कि पर्सन एग्रीव की परिभाषा में नॉन मुस्लिम भी आते हैं। इसीलिए सेक्शन 6 में जो पर्सन एग्रीव वर्ड है उसकी कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी मैंने चैलेंज की है। और हमारा ऐसा मानना है, ये वक्फ की आज मैं जितनी आपके सामने बातें रखने जा रहा हूं, इन सारी बातों में अगर इसका मूल देखा जाए तो इसका सोल्यूशन भी है। सोल्यूशन एक है, और जो मुझे लगता है कि सारे लोग उससे एग्री करेंगे। एक सोल्यूशन है, केंद्र सरकार एक छोटा सा अमेंडमेंट कर दे वक्फ एक्ट कि वक्फ एक्ट 1995 नॉन मुस्लिम्स पे अप्लाई नहीं होगा। एंड ऑफ 2013 से पहले यही सेटअप था कि वक्फ एक्ट 1995 नॉन मुस्लिम्स पे अप्लाई नहीं होता। ये सारी चीजें 2013 के बाद की गई। तो वक्फ एक्ट का सेक्शन, मैं बस 2 मिनट और ले रहा हूं, सेक्शन 4, 5, 6 और 8 अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। सेक्शन 40 सब क्लॉज 3 जरूर पढ़िएगा, जिसमें वक्फ को असीमित अधिकार दिए हुए हैं किसी मठ मंदिर किसी भी संपत्ति को वक्फ संपत्ति घोषित करने की। सेक्शन 53 और 54 में अगर कोई वक्फ संपत्ति कब्जा कर देता है तो राज्य सरकार को वो ऑर्डर कर सकते हैं उनको इंक्रोचमेंट को हटाने का। ऐसा कोई पावर किसी हिंदू संपत्ति के लिए नहीं है। सेक्शन 85 में वक्फ ट्राइब्यूनल बना हुआ है। सेक्शन 101 में जो वक्फ के मुतवल्ली वक्फ बोर्ड के मेंबर्स उनको पब्लिक सर्वेंट का दर्जा दिया हुआ। किसी पुजारी पुरोहित शंकराचार्य महंत को पब्लिक सर्वेंट का दर्जा नहीं दिया गया होगा, पर वक्फ एक्ट के सेक्शन 101 में उनको पब्लिक सर्वेंट का दर्जा दिया हुआ है। सेक्शन 107 में लिमिटेशन का प्रोविजन उनके लिए एग्जाम किया गया, मतलब अगर उनको सपना भी आ जाए कि ये संपत्ति वक्फ संपत्ति है तो वो कभी भी कोर्ट जा सकते हैं। और सबसे मजेदार बात, सेक्शन 104 में जनरली हमने वक्फ लॉ को ये समझा है कि मुसलमान जो है वही वक्फ कर सकता है, अपनी संपत्ति को वक्फ संपत्ति घोषित कर सकता है। पर वक्फ एक्ट के सेक्शन 104 में अमेंडमेंट करके कहा गया कि जो नॉन मुस्लिम है वो भी वक्फ कर सकता है। इसका रिजल्ट ये हो रहा है कि इससे कन्वर्जन हो और जो मैल प्रैक्टिसेस है वो बढ़ रहा है। तो ये सारे प्रोविजंस हैं। सेक्शन 85 और 89 भी है कि अगर आपको वक्फ के खिलाफ केस फाइल करना है तो आपको उनको 2 महीने की नोटिस देनी पड़ेगी। जस्ट लाइक सीपीसी में जो सेक्शन 80 है, जस्ट लाइक अ पैरेलल गवर्नमेंट। तो इन सारे सेक्शन के खिलाफ हमारा विरोध है और मुझे पूरी उम्मीद है कि इसमें जब भी अमेंडमेंट होगा, अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर होगा, तो उसमें हमें बहुत बड़ी एक जो हम देश में इक्वालिटी की बात करते हैं वो इक्वालिटी की चीजें आएंगी। बहुत coupled with the personal experiences, it was very enlightening. Thank you. Proceeding, I'd like to call our keynote speaker, Paul G, on the podium. Well, firstly, thanks for having me here today. I was just expecting to be a spectator, so I'm very thankful and honoured to give my own perspectives about it. So I haven't necessarily had anything to talk about, but I will take on several topics at a few minutes each. I'll discuss India-Greece relations, Pakistani-Turkish relations, how Christianity arrived in Greece, and a few other topics. Us Greeks, we, just like India, have experienced hundreds and hundreds of years of Islamic conquest, genocide, wealth of drain, all of these same experiences that India has experienced under Turkish rule, Muslim rule, and later on with the British. So if there is one people who can at least empathize and sympathize with India, it is certainly us. The first thing I want to talk about is Turkification and Islamification. Now we know that in Greece, or in ancient Greece, medieval Greece, we're a civilization that expanded across the European continent and across Western Asia, or what we call Asia Minor or Anatolia. And when the Turkish horsemen in their tens of thousands started arriving and conquering Anatolia and into Europe, there was great slaughter, great genocide, and more destructively was the forced conversion of Christian peoples in Anatolia to Islam, and not just that, but being ripped away from their ethnic identity and becoming Turks.
So if one was to be Muslim in Anatolia, it automatically meant that they were Turkish, irregardless of their ancestry. This is perhaps one of the greatest traumas that any people can experience, to be ripped away from your roots and your ancestry. And this is a struggle that has not just been going on that occurred during medieval times, but it's a struggle that we're experiencing and facing today. And it's one that we absolutely cannot ignore and must take absolutely seriously. So I'll continue on to Greece and India relations. Now, it's great. We can say that we've known each other for over 2,000 years. Alexander the Great came as a conqueror. That's not exactly necessarily to be proud of, but it is a historical fact, one that can't be changed. What is unique, though, is the culture that emerged afterwards, the Indo-Greek culture, or Greco-Buddhist culture. And here we see the amalgamation of Hellenic civilization with Indic civilization. And what we see here, and I'm just commenting on history, it's not necessarily my own thoughts or ideology or anything like that, but we saw an amalgamation of cultures, a respectable cultures. One culture, the Greek culture, didn't try to supplant the Indian culture. And that's something fundamentally different to what happens when Islam arrives in India, or when Islam arrives to Western Asia. What does it mean, though? It's fine for us to say that we've had a relationship for 2,200 years. So what? What does that mean today? You know, we can pat ourselves on the back. Great. So what? While we've been congratulating ourselves on this deep history, Turkey and Pakistan have been fostering deeper and deeper relations. And this has forced Greece, and it shouldn't have been this factor that brought Greece closer to India. What we see with the Turks and the Pakistanis at the moment, as well with the Azerbaijanis, and they describe themselves as three brothers, or effectively as brothers, is that they are closely coordinating together with they're closely cooperating together to displant and to pressurize India, especially over Kashmir. And for the Turks, it's because they've got a greater outlook on the world. It's not necessarily the Ottoman. The Ottoman Empire never reached India, actually. You know, it was quite limited towards Western Asia and Europe. What we see under Erdogan is a pan-Turkic ideology, so to encapsulate all the Turks of Central Asia and Western Asia together, as well as neo-Ottomanism. So it's a sort of syncretic ideology. And what Erdogan has is a view of a greater Turkestan that reaches from Europe all the way to Kashmir. And in this way, we see that the Pakistanis themselves are going through another identity transformation. So we know that when they first emerged, they wanted to reject their Hindu ancestors. And they concocted a story that perhaps the Arabs, perhaps the Persians, today we're hearing that they're perhaps Turks, and I'm sure soon enough we'll hear that they're Chinese. And this is another example of a deep trauma of what Islamification and Turkification has had on indigenous peoples. It's not just a rejection of your own roots, but it's an extreme hostility towards them. So when we look at Turkey today, I said that there's only tens of thousands of Turkish horsemen rode into Anatolia, Western Asia, and took it over from the indigenous peoples. But the indigenous peoples numbered in their millions. So what happened to these people? Why is Turkey 80 million people today, 85 million people today, when there was only tens of thousands of horsemen that came from Central Asia? Effectively, there was forced conversion, as I mentioned, there was forced Islamification. And this is where Pakistan and Turkey also have a lot of similarities with each other, where they've got this identity crisis and they're forced into each other so that they can aggressively attack their ancestors together, whether that's Greeks and Indians. In this way, we see today that in Greece, there's a community of over 100,000 Pakistanis. How did they arrive in Greece? Many people may believe that it's just an open door policy that Greece had, allowed them to come in because Europeans are supposedly tolerant in that way. However, that's not exactly what's happening. There is a very, very clear systemic organisation from Turkey to
flood Greece and therefore Europe with mass Muslim migration. So what we've seen since 2015 especially is hundreds of thousands of Muslim migrants, not necessarily from Syria, so we call it the Syrian refugee crisis. However, what we discovered is that the Syrians were actually a small number. The majority of the Muslims that were entering Greece and Europe actually came from Pakistan, Afghanistan, Iran, even from Africa, and calling themselves Syrians to try and get refugee status. This isn't just some spontaneous event. It is organised by Turkey in a very systemic manner. In the early 1990s, the then Turkish president, Turgut Özal, said in a statement, "We don't need to go to war with Greece, we just need to send them millions of migrants and be done with them." So 3 decades ago, they made it extremely clear that they've got this plan to flood Greece with migrants, to create a demographic change, it cause all sorts of problems for us, and therefore onto Europe as well. Since 2015, when Erdogan opened the gates to Greece, the reason he did that was to force pressure on the European Union and NATO to support the Turkish military operation in northern Syria against the Kurds. As he didn't get what he wanted, he flooded Greece with hundreds of thousands of immigrants, and we saw the scenes of young men, overwhelmingly men, walking their way all across Europe to reach the richer countries of Europe. However, not all of them made their way to Europe. So now in Greece, we've got a community of over 100,000 Pakistanis, overwhelmingly Turkophile, with a disdain for Greece. And although we have not experienced the terrorist attacks in Greece that Western Europe has, we've seen terrorist attacks all across the UK, Britain, Belgium, Germany, etc., etc. Greece has not experienced that. Rather, I would suggest that we've got a dormant threat. So although the Pakistanis in Greece and the Afghans have not committed terrorist attacks like other Muslim populations in Europe, I believe that they're ready to be activated when Erdogan gives the instructions whenever there's a war between Greece and Turkey. So in this way, we experience a severe threat from Erdogan and Turkey wanting to weaponize Muslim migrants against Greece and to cause all sorts of problems. And here we see also a clash of ideologies. In Western Europe, they support open door policies. They want to allow anyone into Europe without question, even if they don't have identification cards. However, us Greeks have been a frontline state against invaders into the European continent for thousands of years, whether it was the Persians, later the Zoroastrians, whether it was the Arabs, whether it was the Turks. We've always been the frontline state for Europe. And the Western and Northern Europeans who have been able to prosper from this and themselves engage in disruptive colonialism have benefited from our own suffering of protecting them. And this is where we see a huge division in European ideology, because they have not had to suffer for hundreds of years under Islamic rule, seeing their places of worship being converted into mosques or completely destroyed, or having their identity and language taken away from them, and a complete loss of identity and who they are. Western Europe hasn't experienced that. Us Greeks have. And this is why we're a lot more hostile towards mass migration towards Europe, while the Western Europeans kind of encourage them to keep pouring in.